ਸਰਵੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ, ਚੱਠਾ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਰੰਗਾਲੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ 11ਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ऐसा वाक़या आया भाई आपस में थोड़ी जी रंजिश हुई, लेकिन वो रातों रात ख़त्म हो गई। सरबत साध संगत जी, बजुर्ग साढ़े बैठे हैं साढ़े नाल। मैं तुहानूं मुक्तसर ही 1947 ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਮ ਉਮਰ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। 1947 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁੰਛ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਸਨ। ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੰਛ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਗ ਤੋਂ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੰਛ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੁੰਛ ਕੋਈ ਦਿਗਵਾਰ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜਾ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੌਜ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਵਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਈ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਠਾਏ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਭੇਜਿਆ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1947 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਗਰੋਟਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੋਰ ਕੈਂਪ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 1952 'ਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਭੋਰ ਕੈਂਪ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਨੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਤਵਾਰੀ ਆ ਕੇ 1953 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। 60 ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ 1960 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਪੈਦਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਵਾਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਆ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਬਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਾਣਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਏ। तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਗੁਜ਼ਾਰੇ।
पर यह है उस वक्त असी अपने बजुर्ग लोगों को देखते स बजुर्गवाद साढ़े को जिंदा 47 विच आया है वो साढ़े सामने सी और इन्हां विच इतना प्यार सी। मैं तुहानूं दसां कि वो थरवे महल्ले तो लैके यूनिवर्सिटी तो लैके तुसीं उपर तक आ जाओ, चट्ठा पिंड वाल चले जाओ, ये सब असी लोग एक दूसरे के बड़े नज़दीकी रिश्तेदार हाँ। इन्हां बजुर्गों की ये सोच सी कि असी इकट्ठे रहिए। हालात ऐसे सन कि असी इकट्ठे रह के और इकट्ठे रहने दे विच बहुत फायदा होया। साढ़े बजुर्ग लोग गड्डियां लै के चले जाते सन, कोई क्लीनर बनया, कोई ड्राइवर बनया, कोई फौज ही चला गया, कोई किधरे चला गया, पर इन्हां बजुर्ग लोगों ने साड़ी पूरी हिफाजत की। हुण मैं अपनी गल तुहानूं दसां, मेरे बजुर्ग भी गड्डी नाल क्लीनर होए, ड्राइवर होए, इत्थे चलाते थे, नेपाल चला गए। तो साड़ी जिहड़ी एक इत्थे देखभाल सी, दादक टब्बर भी है सी परिवार विचों, पर नानकिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ टब्बर सी वो सखे सन सारे। इन्होंने बड़ी परवरिश की असी सारे। और क्यों उन्होंने बजुर्ग लोगों ने यह सोचा कि असी सारे इकट्ठे रहांगे तो सानू फायदा होएगा। अजकल का वक्त यह है कि भरा भरा नूं देख के राजी नहीं। और इन्होंने बजुर्ग लोगों ने कितनी वधिया सोच सी। मैं तुहानूं मुक्तसर गल दसां कि उस वक्त ये लोग रब नाल इतने जुड़े सन। असी सिर्फ 11 कुंबे सन उस इत्थे थल्ले जिहड़ा महला वो छड्ड के। साडे कोल मत्था टेकण वास्ते असी भोरकियां बजांदे सां। भाई दयाल सिंह होरां दा गुरुद्वारा सी जां भाई हाकम सिंह होरां दा गुरुद्वारा हुंदा सी, सिंह सभा दूर सी। इन्हां ने इत्थे एक छोटा जिहा गुरुद्वारा साडे विहड़े विच बनाया, 20 बाई 20 फुट का मेरा ख्याल है गुरुद्वारा साहब बनाया। उस तो बाद फिर एक गुरुद्वारा साहब इत्थे बनया। ये इन्हां बजुर्गों की सोच सी, इन्होंने इकट्ठियां रखिया। अज का वक्त जिहड़ा असीं देखदे हां अपने, और कोई भी इत्थे मैं तुहानूं हकीकत दसना, साडा एक डेरा है डेरा रंगाली साहब। असी तो ये समझते हाँ जिथे साढ़े गुरु साहिबान के अस्थान ने पूजन योग ने, पर साडा ये डेरा जिन्हां दी बदौलत असी लोग सिख सजे हैं। मेरे को अपना रिकॉर्ड है। मैं इस वक्त मेरे पोतरे जड़े हैं वो 11वीं थां ते सिख ने। उस तो पहले 6 मेरे को होर रिकॉर्ड ने जिहड़े हिंदू सन ब्राह्मण। वो कित्थों नस के गए, कोई कश्मीर तो गया, कोई सियालकोट तो आया, कोई इधरों चल के। ये साढ़े लोग पहाड़ां भी जाके इकट्ठे उत्थे भी इकट्ठे वसदे रहे। पर अज जदों असीं ये देखते हैं कि ना तो कोई डेरे नूं मनदा है। ये साडा एक डेरा है जिहड़ा पूजन योग है। मान साहिबान ने बड़ी मेहनत करके इस सिख फुलवाड़ी नूं इत्थे कायम रखिया। मान बजित्तर सिंह साहब सन साडे टाइम जिहड़े असां उन्होंने देखा है, उन्होंने भी हर थां पहुँच के। मैं तुहानूं एक अर्ज़ करा कि एक बार एक कॉन्फ्रेंस हुई सी, कोई 400 साल शायद गुरपुरब सी, बड़े मान साहब जी जिंदा सन। इन्होंने अमृतसर साहब मैं भी गया था। इन्होंने उत्थे एक इन्होंने निर्मले संतां दा करके इन्होंने मौका मिलिया, उत्थे उन्होंने टाइम दिता गल करन दा। और मैनूं अजे तक याद है मान साहब जी ने कहा कि सानू बड़ी हैरानगी हुंदी है जदों असीं पंजाब विच लखनपुर तो राह टप जांदे हां। साडी ये धरती है गुरु साहिबान दी। इत्थे 10 गुरु साहिबान ने कितनी घालना घाल के सारी कौम नूं रखिया। पर असीं अज देखते हैं जदों लखनपुर तो राह टपदे हां ते किसी दी दाढ़ी है नहीं ते किसी दे केस है नहीं। पर जम्मू कश्मीर दे विच उन्हां दे टाइम तक वो उन्होंने दस्सिया कि मैं हर घर घर जाना, सिक्खी नूं कायम रखिया है। और ये गल जिहड़ी है ये पंजाब दे सारे जथेदार भी मनते हैं कि जम्मू कश्मीर जिहड़ी सिक्खी है वो साबत सूरत है। चाहे हुण असीं हुण मैं वो गल नहीं लफज इस्तेमाल करांगा कि कितने कुकर्मां च पै गए हैं साडे बच्चे, कितने यानी गलत सोसाइटियां विच पै गए हैं, इन्हां नशे पत्तियां च पै गए हैं। और फिर दूसरी गल जिहड़े असीं आपस विच इतफाक नहीं रखते। हर महल्ले विच असीं देखते हैं, हर थां देखते हैं कि बस कोई पार्टियां बाजियां ने, वो किहड़ा प्रधान है तो किहड़ा सैकटरी है तो वो किस तरह बन गया, वो किस तरह होया। असीं हत्थ जोड़ के तुहाडे अगे बेनती करते हैं, अगर असीं इस स्टेज ते पहुँचे हैं ना,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ अगर मैं हर ਥਾਂ देखते हैं इकट्ठा मिल जिथे भी जिथे गुरुद्वारा साहब ने वो क्यों इतने असी आलीशान बिल्डिंग बना सकें क्योंकि असी एक मुठ था। हुण तो असी एक दूसरे को मनते ही नहीं। मेरी अपनी होश में साढ़े इस महल्ले एक दो दफ़ा ऐसा वाक़या आया भाई आपस में थोड़ी जी रंजिश हुई, लेकिन वो रातों रात ख़त्म हो गई, बिल्कुल रातों रात ख़त्म हो गई। वो रंजिश किसी ने रहन नहीं देती। आज मनते ही नहीं हैं। अजे किसी को कहो तो आखते हैं जी तुसी अपना काम करो। असी मैं तो ये जी जिंदगी का असी अपना तजर्बा है नगरोटे तो आके आज तक पोर कैंप भी रहा, पहले टेंटा भी सा, फिर चूँकि गड्डियां का काम काज करन लगे, कुछ चीज़ें चूरियाँ लियान लक्कड़ लियान, कच्चे कमरे बनाए। कच्चे कमरियां तो हुण अज अगर असी लोग हर घर दे विच किहड़ा घर है कोई होएगा मेरे वर्गा बदकिस्मत जिसको कच्चा मकान होएगा। सारे जिहड़े हैं बहुत फर्स्ट क्लास हैं, सारिया गड्डियां ने, मोटरसाइकिल स्कूटर चार चार घर ही खड़े हैं। ये किस करके है? साडे उन्हां बजुर्गां ने बिल्कुल गुरु साहिबान ते भरोसा और आपस में इतफाक, इस कारण जिहड़ा है असी इस स्टेज तक पहुँचे हैं। मैं तो बेनती करांगा सब नौजवान वीरां नूं कि भाई दुबदा बिच ना पाओ। कोई की कर रहा है, मैं अगर कोई गलती कर रहा तो मैनूं तरीका है कोई समझाने का, उस तरीके नाल समझाओ। ये ना करो कि डांग ला के छोटा पिछे मगरों जाओ। और आपस में प्यार मुहब्बत नाल ये असी प्यार मुहब्बत नाल बनाया है। ये वीर जी मेरे प्रधान सन। असी 3 साल उगराई करते रहे हर थां हर बस्ती। नहीं तो पहले साढ़े महल्ले में साढ़े घर के कोल बाहर छोटा जा गुरुद्वारा साहब से, फिर ये सामने वाली बिल्डिंग बनाई, फिर ये तैयार की। क्यों तैयार हुई? इतफाक से आपस में। मैं सब तो बड़ा घाट जी इस वक्त साढ़े कौम में मैं देख रहा कि जी बेइतफाकी है। बेइतफाकी नूं दूर करने की कोशिश करो मेरे नौजवान वीरों, और बजुर्गों की कदर करो, बजुर्गों की इज्जत करो, बजुर्गों की गल मनो। असी जिंदगी बड़ा कुछ देखे पर वो गल नहीं मनते। अज किसी अजीज ना कोई गल करो आते 40 सन हैं जी, इन्होंने क्या पता है, अजकल का युग बदल गया। ये गल नहीं है। जिस घर बजुर्ग है उत्थे 100 सुख ने, और कुछ भी नहीं है। बजुर्ग करेंगे तो घर की राखी तो कर दें। इस करके सब तो पहला फर्ज है सिख का गुरु घर नाल जुड़िया रहना। परमात्मा तो है ना, इस तो असीं डिनाई नहीं कर सकते। वो देख रहे हैं, हर एक को देख रहे हैं। अगर मैं कोई बुरे कर्म कर रहा तो मैनूं जरूर सज़ा मिलेगी, क्योंकि तुसीं नहीं देख रहे पर परमात्मा तो देख रहा है। इस करके असीं तुहानूं यही बेनती करांगे। मैं ज़्यादा जोर इस गल ते दिंदा कि एक तो बजुर्गों की इज्जत करो, दूसरा आपस में प्यार मुहब्बत इतफाक नाल रहो। जिस जगह इतफाक है मुहब्बत है, तुसीं घर की गल लै लो। जे घर में 2 लड़के ने, बाप है माँ है अगे बच्चे ने, वो अगर आपस में ठीक हैं प्यार मुहब्बत ना रहते हैं तो तरक्की करेंगे, दिन ब दिन तरक्की करेंगे। और ये गल याद रखो, अगर तुहाडी कोई पहचान है, तुहाडी होंद है, उन्होंने बजुर्ग लोगों की बदौलत है। मैं अपने आप को तो समझदा कि मेरी अगर इस बरादरी भाईचारे कोई पहचान है तो मेरे बजुर्गों की बदौलत है। उन्होंने चंगे काम किए सन, उन्होंने बरादरी भाईचारे नाल मेल मिलाप रखा, तो सानू भी यही शिक्षा देंदे ने। मैनू अपने फादर ये गल आखदे सन हमेशा कि जीना भी बरादरी नाल है तो मरना भी बरादरी नाल। असीं सारे इस गल नूं ध्यान विच रखीए। और मैं भी तुहाडा वक्त ज़्यादा ना लवां, क्योंकि जे जिंदगी दियां 80 साल के करीब असी साड़ी उम्र हो गई है। जे इस दौरान दे विच अगर जिंदगी देखो कितने उतराव चढ़ाव आए ने, वो तो फिर कई घंटे लग जाएंगे गल्लां करदे हैं। तो मैं यही बेनती करांगा अपने वीरां नूं, भाई एकजुट हो के रहो। मैं चलो गल इत्थे नहीं कहनी चाहिए। असी एकजुट सां,
1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। लिहाजा यही मेरी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ अपील है कि आपस में प्यार मोहब्बत नाल रहो, इतफाक विच रहो और गुरु घर नाल जुड़े रहो। इत्थे कोई वितकरा ना करो आपस में। बिल्कुल मैं इस तो वध हुण तुहानूं की आखां, सब तो बड़ी गल है मेरे मन च है कि गुरु घर नाल जुड़े रहो, कोई घाटा नहीं होएगा सानूं। वो बजुर्ग लोग कोई यूनिवर्सिटी नहीं सी पढ़े, असीं पढ़े हाँ ना यूनिवर्सिटी, असीं कॉलेजां पढ़े हाँ। साड़ी इस पढ़ाई का असां कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। नौकरी कच्ची है, मैं भी 40 साल नौकरी करके वापस आया, लेकिन गुरु घर नाल जुड़े रहना ये सब कुछ उसे दी बदौलत, साढ़े बजुर्गों की बदौलत है। उन्होंने जब तक किया वो इस पासे जुड़े रहे, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ खा रहे हैं ਅਸੀਂ पूरे। मैं बस इतनी बेनती करके तुहाडे तो क्षमा चाहांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।